Hello everyone, how are you all? I hope so you all are fine and safe at your homes, right? So students, today we are going to start the worksheet of the chapter number 11, Light, Sound and Force. So let's start. Day 1, question number 1. Look at the image given below carefully and color the object which gives out light. Write down the luminous or non-luminous object. So students, here we given a picture. तो हमें क्या करना है, इस पिक्चर में जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है उनको हमें कलर करना है. लुमिनियस ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट. तो इस पिक्चर में देखो लुमिनियस ऑब्जेक्ट कौन कौन से लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं. यस, सन, this candle also gives out light, and tube light. So the sun, candle and tube light, they are the luminous object. They gives out light, right? So you have to color these objects and also you have to write down the luminous or non-luminous object. तो यहाँ पे जो luminous object है तो उसके सामने आपको लिखना है luminous object, और जैसे कि ये टेबल इट इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो इसके आगे हमें लिखना है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट. सो ये आपको अपने आप से करना है. देन क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यूज. लुक एट द फर्स्ट एमसीक्यू. डैश इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट. ए पेपर, बी कैंडल और सी पेंसिल. विच इज द लुमिनियस ऑब्जेक्ट? यस, इट इज सी candle, because candle gives out light. That means candle is a luminous object. And the second one, dash is natural luminous object. Which is the natural luminous object? कौन सा इसमें जो object है वो natural है? A candle, B bulb और C sun. So the answer is C sun. Sun is natural luminous object. Third one, we can see things with the help of dash. We can see the things with the help of light, air or lens. Yes, so the answer is light. So we can see the things with the help of light. हमें सारी चीजें दिखती है किसकी वजह से? with the help of light. Now question number 3, match the following. Column A and column B. Under the column A, sun, candle, thin fabric, chair and clear glass. While in the under the column B there is non-luminous object, translucent object, transparent object, luminous object and man-made luminous object. So first one, sun. Sun is a luminous object. So first one is D, luminous object. Then second one, candle. So the candle is E, man-made luminous object. Candle is a luminous object but man-made, not natural, right? So candle is a man-made luminous object. Then the third one is thin fabric. So the thin fabric is, yes, it is a transparent object. Thin fabric is transparent object. Then fourth one is chair. Chair is a it is a non-luminous object. And the last one, clear glass. Clear glass is the translucent object, right? So fifth one is, its match is B, translucent object. Then question number 4, which among the following is a luminous object? तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, राइट. हमें इसमें से टिक करना है कि कौन सा luminous object है. A sun, B table और C bag. Yes, so the luminous object is A sun. Then question number 5, match the following. A bag, B हमें गिटार का पिक्चर दिया गया है, C वेल्डिंग मशीन का हमें पिक्चर दिया गया है, देन D is दिया, राइट. एंड लुमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, म्यूजिक एंड नॉइज. तो यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, राइट, तो उनके जो साउंड्स है या उनकी जो ऑब्जेक्ट है उनके अकॉर्डिंग हमें उसको मैच करना है. तो फर्स्ट वन इज बैग. सो बैग इज अ, यस, इट इज अ नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो इसको आप मैच कर दो. एंड द सेकेंड वन इज अ गिटार. तो
गिटार क्या होता है, उसमें से क्या प्ले होता है, म्यूजिक, तो गिटार और म्यूजिक को मैच कर दो. देन द थर्ड वन इज वेल्डिंग मशीन. सो वेल्डिंग मशीन इज अ यस, ये क्या करती है, कौन सा साउंड करती है, नॉइज, ये नॉइज करती है, तो इसको और नॉइज को आप मैच कर दो. देन द लास्ट वन इज दिया. दिया इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इट गिव्स आउट लाइट, तो इसको भी आप मैच कर दो. ओके, नाउ टर्न द पेज. Day 2, question number 1, MCQ. First one, we see objects when dash. A. Light falls on the object. B. Our eyes produce light. C. Object produce on light. Or D. Light falls on us. We see the object when, yes, the answer is A. Light falls on the object. हम तभी कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, राइट? We see the object when light falls on the object. Then the second one, shadow can be formed only if there is dash. Object, screen, light, or D, none of these. So the shadow can be formed only if there is, yes, light. Shadow तभी form होता है जब वहाँ पे light होती है. Third one, longest shadow of an object on the sun is formed during dash. A. Morning, B. Evening, C. Noon, or D. Morning and evening. So the answer is D. Morning and evening. The longest shadow of an object on the sun is formed during morning and evening. Fourth one, push or pull applied on a body is called, yes, D. Force. Push or pull applied on a body is called force. Then question number 2, fill in the blanks. Look at the first one. Objects will move when dash is applied. So the object will move when the force is applied. Second one, force can change the dash of a body. फोर्स जो होता है वो क्या कर सकता है, बॉडी में क्या चेंजेस कर सकता है, उसकी शेप और उसकी साइज. सो द आंसर इज yes, shape. Force can change the shape of a body. Third one, friction helps the body to move dash faster or slower. Friction जो होता है वो बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, राइट, बट इन अ फास्टर वे और इन अ स्लो वे. सो आंसर इज slower. Friction is a special force that slow down the movement. तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट्स की और अगर कोई भी बॉडी की मूवमेंट को स्लो कर देता है. देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, नॉइज इज अ प्लेजेंट टू ईयर्स. इट इज फॉल्स बिकॉज नॉइज इज अ अनप्लेजेंट साउंड. सेकेंड वन, अ पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अ पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. इट इज ट्रू. थर्ड वन, to move a table you need to push or pull it. So this statement is also true. अगर हमें कोई भी टेबल को या कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है, so या तो हमें उसको पुल करना पड़ेगा या तो उसको पुश करना पड़ेगा, राइट. देन द लास्ट वन, फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. इट इज ट्रू. देन टर्न द पेज. क्वेश्चन नंबर 4, write yes or no. First one, can a smaller light source, larger object in a screen form a shadow? Can a smaller light source, larger object in a screen form a shadow? Smaller, अगर लाइट जो होती है वो स्मॉल होती है और जो ऑब्जेक्ट की जो स्क्रीन होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो क्या वो शेडो फॉर्म करता है? So the answer is, no, because लाइट का जो सोर्स है, जो जहाँ से लाइट आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, तो तब क्या शेडो फॉर्म होता है? नो. देन द सेकंड वन, कैन अ लार्जर लाइट सोर्स, स्मॉलर ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन for more shadow? So the answer is yes, because
लाइट का सोर्स है, जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा है और जो ऑब्जेक्ट है वो उससे छोटा है, तो जो शेडो तभी फॉर्म होगा. सो द आंसर इज यस. थर्ड वन, इफ समवन इज ड्राइविंग कार एंड गेट्स स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, हाउ शुड ही और शी बिहेव? सिलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. जैसे कि कोई ड्राइविंग कर रहा है, राइट, और हम फंस जाते हैं एक ट्रैफिक जाम में, तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? ए, कीप honking your car horn. B, stop your vehicle and play the music loudly. C, relax and wait for the traffic police to clear the traffic jam. So the answer is C, relax and wait for the traffic police to clear the traffic jam. Now day number 3, question 1, look at the picture of the things that make pleasant sound. Cross out things that make noise. तो ये हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिए गए हैं, राइट. तो जो भी पिक्चर है उसका साउंड अगर प्लेजेंट है तो हमें राइट करना है, और अगर उसका साउंड नॉइज है तो हमें क्रॉस करना है. फर्स्ट वन, रेडियो. सो रेडियो में से क्या बचता है? म्यूजिक, राइट. सो रेडियो का जो साउंड है इट इज प्लेजेंट, सो यहाँ पे आपको राइट करना है. सेकंड वन, दी बेल ऑफ अ स्कूल, राइट. So it is pleasant sound or noise? Yes, it is pleasant sound, loud but pleasant sound. Third one, bird. So chirping of a bird is a pleasant sound, so write in the box. Then drum. तो ड्रम की जो साउंड होता है वो, yes, it is very pleasant. ड्रम की जो साउंड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाउड होती है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी प्लेजेंट साउंड. देन दिस हॉर्न, इसका नॉइज है तो हमें यहाँ पे क्रॉस करना है, राइट. देन यस, ट्रेन के जो इंजन का साउंड होता है वो नॉइज होता है, देन क्रॉस. देन वेव्स, वाटरफॉल जो होता है, राइट, तो उसका साउंड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है, सो राइट. विसल, यस, इट इज ऑल्सो कैन बी अ प्लेजेंट साउंड एज वेल एज दी नॉइस. अगर आप उसको ज़्यादा बजाते हो तो वो नॉइस में कन्वर्ट होता है, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे. देन गिटार, गिटार का साउंड बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है, देन राइट. Then music is also a pleasant sound. Then yes, bike. तो बाइक का जो साउंड है वो it is a noise, not a pleasant sound. Then fire engine, it is also noise, not a pleasant sound. So cross करना है. Then turn the page. Day 4, think and answer. Why is it difficult to walk on a slippery floor? यहाँ पे फ्लोर का प्रिंट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है. Why is it difficult to walk on a slippery floor? अगर कोई स्लिपरी फ्लोर है तो उसमें हमें वॉक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है? सो द आंसर इज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी फ्लोर बिकॉज द वाटर और लिक्विड और एनीथिंग that make the floor slippery. This reduce the amount of friction between our feet and floor. स्लिपरी फ्लोर पे चलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि अगर फ्लोर पे कुछ वाटर गिरा है या लिक्विड और एनीथिंग दैट मेक द फ्लोर स्लिपरी, राइट. तो क्या होता है कि फ्रिक्शन का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है बिटवीन अवर फीट एंड फ्लोर. जब हम फ्लोर पे चलते हैं, राइट, तो हमारे फीट और फ्लोर के बीच में एक फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हम स्लिप नहीं होते. और अगर वो फ्रिक्शन जो है वो अगर रिड्यूस हो जाता है यानी कम हो जाता है तो हम स्लिप हो जाते हैं. देन द सेकेंड वन, इज इट गुड आइडिया टू कीप द वॉल्यूम ऑफ योर टीवी ऑडियो सिस्टम लो? गिव द रीजन फॉर योर आंसर. So the answer is yes, it is good idea to keep the volume of TV or audio system low. If they are kept at high volume, they will create noise, and too much noise disturbs us. It is also bad for our health. We should play TV and audio system at low volume so that we do not disturb our family and neighbors. So students, हमें हमेशा
तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा टीवी और ऑडियो सिस्टम जो है वो हमेशा हमें लो वॉल्यूम पे सुनना चाहिए, बिकॉज अगर आप हाई वॉल्यूम रखोगे तो हाई वॉल्यूम से क्या होगा, इट विल क्रिएट नॉइज़, तो उससे नॉइज़ क्रिएट होता है और टू मच नॉइज़ डिस्टर्ब्स अस एंड इट इज़ बैड फॉर अवर हेल्थ। तो ज़्यादा नॉइज़ जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। सो वी शुड प्ले टीवी और ऑडियो एट दी लो वॉल्यूम, राइट। हमें हमेशा टीवी और ऑडियो सिस्टम हमेशा वो लो वॉल्यूम पे सुननी चाहिए। इसकी वजह से हम हमारे फैमिली मेम्बर्स और नेबर्स को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, राइट। थर्ड वन, व्हाई डिड आशीष स्लिप व्हेन ही इग्नोर्ड द साइन सेइंग वेट फ्लोर एट एयरपोर्ट। तो आशीष जो है वो स्लिप क्यों हो गया है, जब उस वहाँ पे जो एक साइन बोर्ड था वेट फ्लोर का, जब उसने वो इग्नोर किया, उसने वो देखा नहीं एयरपोर्ट पे, तो वो स्लिप हो गया। हाउ? सो द आंसर इज वेट फ्लोर मीन्स there would be less friction. Wet floor means there would be less friction. When friction is very less, things slide. जब friction बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो things जो है वो slide करती है. If there was no friction, we would not able to walk. अगर friction नहीं है तो हम चल भी नहीं सकते. We would keep slipping off. हम हमेशा slip होते रहेंगे. अगर friction नहीं है तो हम चल नहीं सकते और हम हमेशा slip ही होते रहेंगे. This is the reason why Ashish slipped when he ignored the sign saying wet floor at airport. Then day 5 short question answers. Question है, what are the different types of sounds we hear? So the answer is the different types of sounds that we hear are soft, loud, pleasant, unpleasant and noise. जो हम हमारे आसपास जो साउंड सुनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. There would be soft, loud, pleasant, unpleasant and also it can be noise. Then turn the page. Question number 2. Name the 3 things required to form a shadow. तो हमें things लिखनी है, जो 3 things लिखनी है that is required to form a shadow. So the answer is the things that required to form a shadow are light, an object and a screen. तो शेडो फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट, ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन, राइट. थर्ड क्वेश्चन, राइट 2 फीचर्स ऑफ शेडो. तो शेडो के हमें 2 फीचर्स लिखने हैं. अ शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट. शेडो जो वो होता है वो कभी फॉर्म नहीं होता जब वहाँ पे लाइट नहीं होती है. विदाउट लाइट द शेडो कैन नॉट बी फॉर्म्ड. सेकेंड वन, अ शेडो इज सेम एज दी ऑब्जेक्ट. शेडो जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज का ही होता है. देन फोर्थ वन, व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट. सो एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट देते हैं उनको हम बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट, राइट. देन डे 6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, difference between pleasant and unpleasant sound with examples. So a sound which we likes to hear are called pleasant sound. For example, music. तो जो साउंड हमें सुनना अच्छा लगता है, राइट, तो उनको हम बोलते हैं pleasant sound. For example, music. While the sound which we does not like to hear are called unpleasant sound. For example, continuous honking of vehicle. जो साउंड हमें सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, राइट, it is called unpleasant sound. For example, continuous honking of vehicle. Then second question, difference between music and noise with one example each. तो म्यूजिक और नॉइज के बीच का हमें डिफरेंस लिखना है, राइट. साउंड विच आर गुड एंड प्लेजेंट टू योर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिक. तो जो साउंड अच्छा है और प्लेजेंट है हमारे ईयर्स को सुनने के लिए, राइट, उसको हम बोलते हैं म्यूजिक. while sound which disturbs you and are not good and pleasant is called noise. तो जो साउंड हमें डिस्टर्ब करना है और ऑल्सो जो साउंड अच्छा नहीं है और प्लेजेंट नहीं है उनको हम बोलते हैं नॉइज. फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी टॉकिंग इन द क्लास एट द सेम टाइम, राइट, इट इज कॉल्ड नॉइज. देन द लास्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द फ्रिक्शन. So the friction is a special force that slow down movement, right. फ्रिक्शन एक स्पेशल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है. व्हेन फ्रिक्शन इज वेरी लेस थिंग्स स्लाइड्स. जब फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो थिंग्स जो है वो स्लाइड कर देती है. एंड व्हेन इट मोर
थिंग्स डजंट मूव, और जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, यस, थिंग्स जो है वो मूव ही नहीं करती है. विदाउट फ्रिक्शन वी आर नॉट एबल टू वॉक. सो विदाउट फ्रिक्शन हम वॉक भी नहीं कर सकते हैं. ओके, so students, that's all for today, and your homework for today is you have to complete the worksheet of the chapter number 11, light, sound and force, right? and इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज. थैंक यू.